Indian Prime Minister there at Sabarmati Ashram, where he will inaugurate the redeveloped Kochrab Ashram. To tell you, it was the first ashram established by Mahatma Gandhi after coming to India from South Africa in 1915. It is still preserved as a memorial and tourist space by Gujarat Vidyapeeth. Prime Minister there will also launch the master plan of the Gandhi Ashram Memorial. The memorial then will serve as an inspiration for future generations, fostering Gandhian thoughts and will enliven the essence of Gandhian values through a process informed by principles of trusteeship. To tell you, Gujarat Vidyapeeth, which was preserving the memorial till now, continues to preserve it as a monument and tourist attraction. The Prime Minister will also launch the master plan for the Gandhi Ashram Memorial. According to sources, the initiative intends to improve the infrastructure surrounding Sabarmati Ashram and offer the visitors with cutting-edge services and create a world-class memorial to Gandhiji. Prime Minister there signing the visitors' book at Sabarmati Ashram in Gujarat. The revamping of Kochrab Ashram, the first ashram established by Mahatma Gandhi, scheduled, and Prime Minister is going to mark the opening today. The Prime Minister will also launch the master plan of the Gandhi Ashram Memorial to expand the existing 5-acre area to a sprawling 55 acres. Also, Prime Minister Modi today will unveil projects dedicated to the restoration and conservation of 36 existing buildings there, which includes the revered Hriday Kunj, that was Gandhiji's residence in Sabarmati Ashram. Earlier today, Prime Minister Narendra Modi reached Ahmedabad to unveil a series of railway projects focused on enhancing infrastructure and connectivity. He also laid the foundation stone for railway projects exceeding 85,000 crore rupees, encompassing railway workshops and the Fulton Barmati new line, and he launched 10 new Vande Bharat trains and extended the routes of 4 existing Vande Bharat trains today. Right on your screens, you can see Prime Minister Narendra Modi at the Sabarmati Ashram speaking to the people there, interacting with them right before he will open the revamping of Kochrab Ashram, the first ashram established by Mahatma Gandhi. Later, their Prime Minister will also launch the master plan of the Gandhi Ashram Memorial to expand the existing 5-acre area to a sprawling 55 acres. The Prime Minister will also launch the master plan for the Gandhi Ashram Memorial. To tell you again that Kochrab Ashram was the first ashram built by Mahatma Gandhi after arriving in India from South Africa in the year 1915. And under this, the plan is to revamp the ashram for the future generations. The Gujarat Vidyapeeth continues to preserve it till today as a monument and most important tourist destination attraction for the people, for the tourist coming to Ahmedabad.
The Prime Minister will also launch the master plan there. And right up on your screens, you can see Prime Minister Narendra Modi understanding the entire area of Sabarmati Ashram, and right before declaring the opening of the revamp of Kochrab Ashram, the first ashram established by Mahatma Gandhi. Prime Minister there, understanding the entire area, looking at the exhibition, the exhibited paintings, the exhibited pictures there. In a moment from now, he will mark the opening of the revamped Kochrab Ashram, the first ashram established by Mahatma Gandhi, the father of the nation. Prime Minister will also launch the master plan of the Gandhi Ashram Memorial, the much needed revamp of the ashram to preserve it for the future and the coming generations, so that the memorial can serve as an inspiration for the generations, fostering Gandhian thoughts there, and will enliven the sense of Gandhian values which are important for the youth and the present country, through a process informed by principles of trusteeship. Also, we may tell you it has been the constant endeavour of the Prime Minister to uphold and cherish the ideals which Mahatma Gandhi stood for, and also developed avenues which showcase his ideals and bring him closer to the people. In yet another important effort in this endeavour, the Gandhi Ashram Memorial Project will help revitalize Mahatma Gandhi's teachings and philosophy for present and future generations, most importantly. Well, we may tell you, under this master plan, the existing 5-acre area of the ashram will be expanded to 55 acres. And most importantly, in the plan, 36 existing buildings also will undergo restoration, out of which 20 buildings, including Hriday Kunj, which served as Gandhi's residence, will be conserved. 13 will undergo restoration and 3 will be reproduced. The master plan includes new buildings to house administration facilities, visitor facilities like Orientation Center, interactive workshops on chakra spinning, handmade paper, cotton weaving and leather work, and public utilities. The buildings there will also house interactive exhibits and activities to showcase aspects of Gandhiji's life as well as the legacy of the ashram. The master plan also envisages the creation of a library and archives buildings to preserve, protect and disseminate Gandhiji's ideas for the youth and the tourists there. It will also create facilities for visiting scholars to use the ashram's library and archives. Well, the project will also enable the creation of an interpretation center that can guide visitors with different expectations and in multiple languages, making their experience culturally and intellectually more stimulating,
more enriching. The master plan also includes new buildings to house administration facilities, visitor facilities like an orientation center, interactive workshops on chakra spinning, handmade paper, cotton weaving, most importantly, leather work and public utilities. The buildings will also house interactive exhibits, which will be very informative for all the visitors, and activities to showcase aspects of Gandhiji's life, as well as the legacy of the ashram, most importantly for the people to come there, for the tourists to join Sabarmati Ashram. The master plan also envisages the creation of a library and archives building to preserve, protect and later disseminate Gandhiji's ideas. Right on your screens you can see Prime Minister Narendra Modi watering and planting a plant there at the Sabarmati Ashram right before the opening of the revamping, inauguration of the redeveloped Kochrab Ashram. Prime Minister there up on your screens watering the plant there himself. The plan is to focus on Gandhiji's life and revamp the ashram. The project is also to enable the creation of the Interpretation Center, up on your screens you can see Prime Minister Narendra Modi watering and planting the plant there himself right before announcing the revamping of the ashram. The memorial will serve as an inspiration for future generations, fostering Gandhian thoughts, and will enliven their sense of Gandhian values through a process informed by principles of trusteeship. To tell you again that Kochrab Ashram was the first ashram established by Mahatma Gandhi himself after coming to India from South Africa in the year 1915. In Gujarat, it is still preserved as a memorial and tourist space, especially by Gujarat Vidyapeeth. Gujarat Vidyapeeth continues to preserve it as a monument and tourist attraction. षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम ये जहां पर सम्मिलित होते हैं वहां परम शक्ति भी सहाय होती है। ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। साबरमती आश्रम पुनः निर्माण आश्रम भूमि वंदना के समारोह में उपस्थित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात राज्य के माननीय राज्यपाल महोदय श्री आचार्य देवव्रत जी, गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी तथा मंच पर आसीन सभी अतिथियों का और आप सभी का भी हम आदरपूर्ण स्वागत करते हैं। आइए माननीय प्रधानमंत्री जी का विधिवत रूप से स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम सादर अनुरोध करते हैं गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी से कि आप शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। सम्मान का प्रतीक ये खादी की शॉल।
और साथ ही पूज्य बापू की प्रतिमा, जो शिल्पकार के द्वारा निर्मित गांधी जी की मूर्तियां विश्व के 450 से अधिक स्थानों पर मौजूद है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के भी मूर्तिकार ऐसे श्री राम सुतार जी के द्वारा निर्मित पूज्य बापू की ये ध्यान मग्न प्रतिमा अर्पण कर स्वागत हो रहा है। धन्यवाद। और अब साबरमती आश्रम संग्रहालय स्मारक ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री कार्तिकेय साराभाई से विनती है कि आप वर्ष 1917 में पूज्य बापू ने ये साबरमती आश्रम के लिए अपनी धनराशि से जो जमीन खरीदी उसका दस्तावेज की प्रत भेंट अर्पण कर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। धन्यवाद। फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत माननीय प्रधानमंत्री जी। और आइए अब सुनते हैं पूज्य बापू का प्रिय पद वैष्णव जन तो तेनेरे कहिए, जो प्रस्तुत करेंगे बापू की जन्मभूमि पोरबंदर से पधारे हुए हमारे भजनीक भाई बहन। वैष्णव जन तो तेनेरे कहिए रे, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये, पर दुखे उपकार करे तो ये, मन अभिमान न आने रे। वैष्णव जन सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे के नीरे, वाच काच मन निश्चल राखे, वाच काच मन निश्चल राखे, तन तन जननी तेनी रे। समय दृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मात रे, जिह्वात किया सत्य न बोले, जिह्वात किया सत्य न बोले, पर धन नव जाले हाथ रे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, गढ़े वैराग्य जेना मन मारे, राम नाम सुतारी रे बागी, राम नाम सुतारी रे बागी, सकड़ तीरथ के नातन मारे। वैष्णव जन वण लोभीने कपट रहिते छे, काम क्रोध निवार्या रे, बणे नर जेनु दर्शन करता, बणे नर सैयो जेनु दर्शन करता, उड़े को तेरे तारा रे। वैष्णव जन तो तेनेरे कहिए, वैष्णव जन तो तेनेरे कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर प्रस्तुति के लिए। और अब आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर
विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हैं गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी से कि आप अपने स्वागत संबोधन हेतु पधारें। राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी जी के साबरमती आश्रम के पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट के शुभारंभ कार्यक्रम आश्रम भूमि वंदना में हमारे बीच मंच पर उपस्थित सर्वांगी विकास और दूरंदेशी के प्रहरी वैश्विक नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, आदरणीय राज्यपाल महोदय श्री आचार्य देवव्रत जी, यशस्वी अध्यक्ष और नवसारी के लोकप्रिय सांसद श्री सी आर पाटिल जी, मेरे साथी मंत्री श्री मुड़ूभाई बेरा, सांसद डॉक्टर किरीट भाई सोलंकी, राज्यसभा के सांसद श्री नरहरि भाई अमीन, मेयर श्रीमती प्रतिभाबेन जैन, आश्रम के ट्रस्टी और श्री कार्तिकेय सारा भाई, आमंत्रित सभी गणमान्य महानुभाव, गांधी विचार से जुड़े हुए आप सभी नागरिक भाइयों बहनों, प्रेस मीडिया के मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम सभी के बीच उपस्थित विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आश्रम भूमि वंदना कार्यक्रम में आज गुजरात की जनता की ओर से हृदय से मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पूज्य बापू ने जिस भूमि से 12 मार्च 1930 के दिन दांडी कूच शुरू कर ब्रिटिश सरकार की नींव हिलाई थी, आज उसी भूमि पर 12 मार्च की हे दिन के अमृत काल में प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से साबरमती आश्रम पुनर्विकास प्रोजेक्ट का शुभारंभ होने जा रहा है। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। आज से 107 साल पहले 17 जून 1917 के दिन पूज्य बापू ने इस धरती पर साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, जिसके बाद यह सत्याग्रह आश्रम भारत की आजादी के संघर्ष का केंद्र बिंदु भी बना। इतना ही नहीं, 1917 से 1930 के समय में पूज्य बापू की यह कर्म भूमि रचनात्मक कार्यों, मूलभूत शिक्षण, सत्याग्रह और अपनी आध्यात्मिक शोध के उनके प्रयोगों का भी केंद्र बनी थी। देश की स्वतंत्रता के लिए अलग अलग अभियान और जन आंदोलन चलाने के निर्णय इस आश्रम से ही लिए जाते थे। यह कितनी बड़ी बात है कि इस पुण्य धरती से उपजे आंदोलन ने हमारी आजादी के सपनों को साकार करने का काम किया है। यह आश्रम सही मायने में हम सभी के लिए आधुनिक भारत का तीर्थ स्थल है। आज जिसे लोग गांधी आश्रम के नाम से जानते हैं, वो सिर्फ 5 एकड़ में फैला मूल आश्रम है, जिसे स्मारक के रूप में संजो कर रखा गया है। प्रधानमंत्री जी ने 2021 में आश्रम की मुलाकात के दौरान मूल नैतिकता, सत्व और तत्व को बनाए रखने के साथ आश्रम के पुनर्विकास की इच्छा जताई थी। प्रधानमंत्री जी के विचार हैं कि यह आश्रम सिर्फ गांधी मेमोरियल न बना रहे, बल्कि यह गांधी जी के विचारों, आदर्श और मूल्यों को पूरे विश्व भर में फैलाने का भी माध्यम बने। इस विचार को साकार करते हुए आज प्रधानमंत्री जी गांधी आश्रम पुनर्विकास प्रोजेक्ट को शुभारंभ करने जा रहे हैं। 1200 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट का विस्तार 55 एकड़ में किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक मदद के लिए प्रधानमंत्री जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले कई वर्षों से आश्रम की भूमि पर कुछ ट्रस्टों की कामगिरी चल रही थी और आश्रम वासियों के अनेक परिवारों यहां रहते थे। इनके सहयोग के बिना इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का होना संभव नहीं था। मैं आज इस अवसर पर सभी ट्रस्टी और आश्रम वासियों का
बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। खास बात यह है कि इस पूरी प्रोसेस में लैंड एक्विजिशन लॉ की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। आपसी सहयोग और विश्वास के साथ बातचीत करने हमने इसका समाधान निकाला। आप सभी के सहयोग और पूज्य बापू के प्रति आपका आदर भाव के कारण यह प्रोजेक्ट समय पर शुरू होने जा रहा है। मैं एक बार फिर आश्रम के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के सहयोग के लिए सभी आश्रम वासियों और ट्रस्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस अवसर पे इस बात का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत और विश्वगुरु भारत की जन चेतना को जगाने के उद्देश्य के साथ 12 मार्च 2021 के दिन दांडी मार्च को प्रस्थान कराया था और आज आजादी के अमृत काल में गांधी जी को समर्पित आश्रम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी माननीय प्रधानमंत्री जी की शुरू किए जा रहे हैं। यह प्रोजेक्ट महात्मा गांधी के विचारों, आदर्शों, उपदेशों और सिद्धांतों को वर्तमान और भावी पीढ़ी के बीच सदा सर्वदा जीवन करने का काम करेगा। विकास भी और विरासत भी कि नरेंद्र भाई की गारंटी के साथ आज देश विकसित भारत बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत के लिए गुजरात ने भी विकसित गुजरात का संकल्प लिया है और साबरमती आश्रम का यह रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमारी इसी विरासत के गौरव को और बढ़ाएगा। इस विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आप सभी महानुभावों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। आपके इन उष्मापूर्ण शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। गुजरात में श्वभ्रमती के तट पर स्थित साबरमती आश्रम की ये पावन भूमि, जहां से पूज्य बापू ने आज ही के दिन दांडी कूच प्रारंभ कर विश्व को शांतिपूर्ण क्रांति का संदेश दिया था। आश्रम के वही आदर्श, वही आत्मा और नए आकार के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से साबरमती आश्रम का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। सादर अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप रिमोट के माध्यम से साबरमती आश्रम पुनर्निर्माण परियोजना के मास्टर प्लान को लॉन्च करें। अहमदाबाद में साबरमती के तट पर स्थित गांधी आश्रम 1917 से 1930 के बीच गांधी जी की कर्मभूमि रहा। यहीं से गांधी जी ने रचनात्मक कार्य, शिक्षा और सत्याग्रह के प्रयोग किए। यह आश्रम भारत की स्वतंत्रता की खोज का एक महत्वपूर्ण आधार बना। आश्रम की अनुशासित, सरल और प्रमाणित वास्तुकला गांधी जी के मूल्यों और दर्शन का प्रतीक है। कभी यह आश्रम 120 एकड़ के विस्तार में फैला हुआ था। यहां की 63 इमारतें गांधी जी के जीवन आदर्शों से सजी थीं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, यह आश्रम मात्र 5 एकड़ में सिमट कर रह गया। सिर्फ 3 इमारतें ही पर्यटकों के लिए खुली रही। शेष या तो समय के साथ नहीं रही या फिर व्यस्त आश्रम रोड के दूसरी ओर स्थित रही। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जी के इस स्मृति स्थल के जीर्णोद्धार का संकल्प लिया। इस तरह शुरू होने जा रहा है गांधी आश्रम के मूल रूप में लाने का कार्य। आश्रम रोड का मार्ग परिवर्तन करके आश्रम का विस्तार इस तरह से तय किया कि गांधी जी के समय बनी इमारतों को शामिल किया जा सके। विभिन्न ट्रस्टों के माध्यम से परिसर में रहने वाले आश्रम वासियों को घर अथवा उपयुक्त प्रति कर दिए गए। आश्रम के मास्टर प्लान में मौजूदा 5 एकड़ का विस्तार 55 एकड़ तक किया जाएगा।
36 इमारतों का जीर्णोद्धार होगा। मौजूदा इमारतों में इंटरैक्टिव एग्जिबिट और एक्टिविटीज के द्वारा गांधी जी के जीवन के पहलुओं और आश्रम की विरासत के बारे में भी बताया जाएगा। इसके अलावा यहां आने वाले हर एक विजिटर का अनुभव हो अद्भुत, इसलिए आश्रम को एक विश्व स्तरीय मेमोरियल की तरह विकसित किया जाएगा। ओरिएंटेशन सेंटर, चरखा कताई, हाथ से कागज तैयार करना, सूत कताई जैसी एक्टिविटीज लोगों के चरित्र निर्माण में भूमिका निभाएंगी और होंगी लोगों के लिए सुविधाएं। साथ ही साथ आश्रम परिसर को हरियाली से आच्छादित किया जाएगा ताकि यहां आने वाले विजिटर्स एक शांत वातावरण में गांधी जी की शिक्षाओं को आत्मसात कर सकें। महात्मा गांधी परिवर्तन लाए, ये सर्वविदित है कि उन्होंने लोगों की आंतरिक शक्ति को जगाकर उन्हें स्वयं परिवर्तन लाने के लिए जागृत किया, प्रेरित किया। मास्टर प्लान के तहत आश्रम तक पहुंचने के मार्ग को भी बदला जाएगा और ऐतिहासिक दांडी पुल का जीर्णोद्धार भी किया जाना है। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा फंड किया जाएगा। साथ ही ट्रस्ट और आश्रम वासियों के सहयोग से यह होगा परिपूर्ण। गांधी जी की कर्मभूमि की मूल स्वरूप में पुनर्स्थापना उनके मूल्यों और दर्शन को जीवंत रखेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। सबको बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। साबरमती आश्रम से पहले वर्ष 1915 में पूज्य बापू के द्वारा स्थापित कोचरब सत्याग्रह आश्रम के मुख्य स्मारक भवन को भी अब पुनर्विकसित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी से फिर एक बार नम्र अनुरोध करते हैं कि कृपया आप रिमोट के माध्यम से पुनः विकसित कोचरब आश्रम का डिजिटल लोकार्पण करें। धन्यवाद। स्वच्छता, समानता, स्वदेशी, स्वाश्रय तथा स्त्री सम्मान, ये वही आदर्श है जो पूज्य बापू ने इस भूमि से जन जन तक पहुंचाने का प्रारंभ किया था और आज का नूतन भारत भी ये उच्च मूल्यों को आत्मसात कर प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। स्वराज्य से सुराज्य तक की यात्रा का साक्षी रहा ये साबरमती आश्रम, जिसकी भूमि वंदना के पावन अवसर पर आदर और गौरव के साथ आमंत्रित करते हैं देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए। गुजरात के राज्यपाल श्रीमान आचार्य देवव्रत जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, मोड़ू भाई बेरा, नरहर यमीन, CR पाटिल, किरीट भाई सोलंकी, मेयर श्रीमती प्रतिभा जैन जी, भाई कार्तिकेय जी, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, पूज्य बापू का ये साबरमती आश्रम हमेशा से ही एक अप्रतिम ऊर्जा का जीवंत केंद्र रहा है और मैं जैसे हर किसी को जब जब यहां आने का अवसर मिलता है तो बापू की प्रेरणा हम अपने भीतर स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकते हैं। सत्य और अहिंसा के आदर्श हो, राष्ट्र आराधना का संकल्प हो,
गरीब और वंचित की सेवा में नारायण सेवा देखने का भाव हो, साबरमती आश्रम बापू के इन मूल्यों को आज भी सजीव किए हुए हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज मैंने यहां साबरमती आश्रम पुनर्विकास और विस्तार का शिलान्यास किया है। बापू के पहले जो पहला आश्रम था, शुरू में जब आए, वो कोचरब आश्रम, उसका भी विकास किया गया है और मुझे खुशी है कि आज उसका भी लोकार्पण हुआ है। साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना पहला आश्रम कोचरब आश्रम में ही बनाया था। गांधी जी जहां चरखा चलाए करते थे, कारपेंटरी का काम सीखते थे, 2 साल तक कोचरब आश्रम में रहने के बाद फिर गांधी जी साबरमती आश्रम में शिफ्ट हुए थे। पुनर्निर्माण होने के बाद अब गांधी जी के उन दिनों की यादें कोचरब आश्रम में और बेहतर तरीके से संरक्षित रहेगी। मैं पूज्य बापू के चरणों में नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। मैं सभी देशवासियों को इन महत्वपूर्ण प्रेरक स्थानों के विकास के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज 12 मार्च वो ऐतिहासिक तारीख भी है। आज के ही दिन बापू ने स्वतंत्रता आंदोलन की उस धारा को बदला और दांडी यात्रा स्वतंत्रता के आंदोलन के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गई। आजाद भारत में भी ये तारीख ऐसे ही ऐतिहासिक अवसर की नए युग के सूत्रपात करने वाली गवाह बन चुकी है। 12 मार्च 2022 को इसी साबरमती आश्रम से देश ने आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया था। दांडी यात्रा ने आजाद भारत की पुण्य भूमि तय करने में, उसकी पृष्ठभूमि बनाने में, उस पुण्य भूमि का पुनः स्मरण करते हुए आगे बढ़ने में एक अहम भूमिका निभाई थी। और अमृत महोत्सव के शुभारंभ ने अमृत काल में भारत के प्रवेश का श्री गणेश किया। अमृत महोत्सव ने देश में जन भागीदारी का वैसा ही वातावरण बनाया जैसा आजादी के पहले दिखा था। हर हिंदुस्तानी को खुशी होगी कि आजादी का अमृत महोत्सव, उसकी व्यापकता कितनी थी और उसमें गांधी के विचारों का प्रतिबिंब कैसा था। देशवासी जानते हैं, आजादी के अमृत काल के इस कार्यक्रम के दरमियान 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पंच प्राण की शपथ ली। देश में 2 लाख से ज्यादा अमृत वाटिकाओं का निर्माण हुआ। 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ पौधे लगा करके उनका
पूरी तरह विकास की चिंता की गई। इतना ही नहीं, जल संरक्षण की दिशा में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कार्य हुआ। 70,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए गए और हम याद है हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में राष्ट्रभक्ति की अभिव्यक्ति का एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम बन गया था। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत करोड़ों देशवासियों ने देश के बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी। अमृत महोत्सव के दौरान 2 लाख से ज्यादा शिला पट्टिकाएं भी स्थापित की गई है। इसलिए साबरमती आश्रम आजादी की लड़ाई के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प का भी तीर्थ बना है। साथियों, जो देश अपनी विरासत नहीं संजो पाता, वो देश अपना भविष्य भी खो देता है। बापू का ये साबरमती आश्रम देश की ही नहीं, ये मानव जात की ऐतिहासिक धरोहर है। लेकिन आजादी के बाद इस धरोहर के साथ भी न्याय नहीं हो पाया। बापू का यह आश्रम कभी 120 एकड़ में फैला हुआ था। समय के साथ अनेक कारणों से एक घटते 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 केवल 5 एकड़ में सिमट गया था। एक जमाने में यहां 63 छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन मकान होते थे और उनमें से भी अब सिर्फ 36 मकान ही बचे हैं। 6-3-3-6 हो गया और इन 36 मकानों में से भी केवल 3 मकानों में ही पर्यटक जा सकते हैं। जिस आश्रम ने इतिहास का सृजन किया हो, जिस आश्रम की देश की आजादी में इतनी बड़ी भूमिका रही हो, जिसे देखने के लिए, जानने के लिए, अनुभव करने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आते हो, उस साबरमती आश्रम को सहेज कर रखना हम सभी 140 करोड़ भारतीयों का दायित्व है। और साथियों, आज साबरमती आश्रम का जो विस्तार संभव हो रहा है, उसमें यहां रहने वाले परिवारों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इनके सहयोग के कारण ही आश्रम की 55 एकड़ जमीन वापस मिल पाई है। जिन जिन लोगों ने इसमें सकारात्मक भूमिका निभाई है, मैं उन परिवारों की सराहना करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। अब हमारा प्रयास है कि आश्रम की सभी पुरानी इमारतों को उनकी मूल स्थिति में संरक्षित किया जाए। जिन मकानों को नए सिरे से बनाने की जरूरत होगी, मेरी तो कोशिश थी कि जरूरत पड़े ही नहीं, जो कुछ भी होगा इसी में करना है मुझे। देश को लगना चाहिए, ये पारंपरिक निर्माण की शैली को बनाए रखना है। आने वाले समय में ये पुनर्निर्माण देश और विदेश के लोगों में एक नया आकर्षण पैदा करेगा। साथियों, आजादी के बाद जो सरकारें रहीं,
उनमें देश की ऐसी विरासत को बचाने की ना सोच थी और ना ही राजनीतिक इच्छा शक्ति थी। एक तो विदेशी दृष्टि से भारत को देखने की आदत थी और दूसरी तुष्टीकरण की मजबूरी थी, जिसकी वजह से भारत की विरासत, हमारी महान धरोहर ऐसे ही तबाह होती गई। अतिक्रमण, अस्वच्छता, अव्यवस्था, इन सभी ने हमारी विरासतों को घेर लिया था। मैं काशी का सांसद हूं, मैं काशी का आपको उदाहरण देता हूं। वहां 10 साल पहले क्या स्थिति थी पूरा देश जानता है, लेकिन जब सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई तो लोगों ने भी सहयोग किया और काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण के लिए 12 एकड़ जमीन निकल गई। आज उसी जमीन पर म्यूजियम, फूड कोर्ट, मुमुक्षु भवन, गेस्ट हाउस, मंदिर चौक, एम्पोरियम, यात्री सुविधा के तरह अनेक प्रकार की सुविधाएं विकसित हो गई है। इस पुनर्निर्माण के बाद और आप देखिए 2 साल में 12 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु विश्वनाथ जी के दर्शन करने आए हैं। इसी तरह अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के विस्तारीकरण के लिए हमने 200 एकड़ जमीन को मुक्त कराया। इस जमीन पर भी पहले बहुत सघन कंस्ट्रक्शन था। आज वहां राम पथ, भक्ति पथ, जन्मभूमि पथ और अन्य सुविधाएं विकसित की जा रही है। अयोध्या में भी पिछले 50 दिन में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन कर चुके हैं। कुछ ही दिन पहले मैंने द्वारिका जी में भी विकास के अनेक कार्यों का लोकार्पण किया। वैसे साथियों, देश को अपनी विरासत को सहेजने का मार्ग एक तरह से यहां गुजरात की धरती ने दिखाया था। याद कीजिए, सरदार साहब के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक घटना थी। गुजरात अपने आप में ऐसी अनेकों विरासत को संभाले हुए है। ये अहमदाबाद शहर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। रानी की वाव, चांपानेर और धौलावीरा भी वर्ल्ड हेरिटेज में गिने जाते हैं। हजारों वर्ष पुराने पोर्ट सिटी लोथल की चर्चा दुनिया भर में है। गिरनार का विकास हो, पावागढ़, मोढेरा, अंबाजी, ऐसे सभी महत्वपूर्ण स्थलों में अपनी विरासत को समृद्ध करने वाले काम किए गए हैं। साथियों, हमने स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी विरासत के लिए राष्ट्रीय प्रेरणा से जुड़े अपने स्थानों के लिए भी विकास का अभियान चलाया है। हमने दिल्ली में, आपने देखा होगा, एक राजपथ हुआ करता था। हमने राजपथ को कर्तव्य पथ के रूप में विकसित करने का काम किया। हमने कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की। हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्वतंत्रता संग्राम और नेताजी से जुड़े स्थानों का विकास किया, उन्हें सही पहचान भी दी। हमने बाबा साहब आम्बेडकर से जुड़े स्थानों का भी पंच तीर्थ के रूप में विकास किया। यहां एकता नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। आज लाखों लोग सरदार पटेल जी को नमन करने वहां जाते हैं। आप दांडी देखेंगे, वो कितना बदल दिया है। हजारों लोग दांडी जाते हैं आज।
अब साबरमती आश्रम का विकास और विस्तार इस दिशा में एक और बड़ा कदम है। साथियों, भविष्य में आने वाली पीढ़ियां, यहां इस आश्रम में आने वाले लोग यहां आकर ये समझ पाएंगे कि साबरमती के संत ने कैसे चरखे की ताकत से देश के जन मन को आंदोलित कर दिया था, देश के जन मन को चेतनवंत बना दिया था, और जो आजादी के अनेक प्रवाह चल रहे थे उस प्रवाह को गति देने का काम कर दिया था। सदियों की गुलामी के कारण जो देश हताशा का शिकार हो रहा था, उसमें बापू ने जन आंदोलन खड़ा करके एक नई आशा भरी थी, नया विश्वास भरा था। आज भी उनका विजन हमारे देश को उज्जवल भविष्य के लिए एक स्पष्ट दिशा दिखाता है। बापू ने ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा था। अब आप देखिए, हम वोकल फॉर लोकल की चर्चा करते हैं। आधुनिक लोगों की समझ में आए इसलिए शब्द प्रयोग कुछ भी हो, लेकिन मूल तो वो गांधी जी की स्वदेशी की भावना है। और क्या है? आत्मनिर्भर भारत की महात्मा गांधी जी की जो संकल्पना थी वही तो है उसमें। आज मुझे अभी हमारे आचार्य जी बता रहे थे, क्योंकि वे प्राकृतिक खेती के लिए मिशन लेकर के काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि गुजरात में 9 लाख किसान परिवार, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 9 लाख किसान परिवार अब प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ चुके हैं। जो गांधी जी का सपना था, केमिकल फ्री खेती, और उन्होंने मुझे कहा 3 लाख मैट्रिक टन यूरिया गुजरात में इस बार कम उपयोग में लिया गया है। मतलब कि धरती मां की रक्षा का काम भी हो रहा है। ये महात्मा गांधी के विचार नहीं है तो क्या है जी? और आचार्य जी के मार्गदर्शन में गुजरात विद्यापीठ में भी एक नई जान भर दी है। हमारे इन महापुरुषों ने हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ा है। हमें आधुनिक स्वरूप में उसको जीना सीखना पड़ेगा, और मेरी कोशिश यही है। खादी, आज इतना खादी का ताकत बढ़ गई है जी, कभी सोचा नहीं होगा कि खादी कभी, वरना वो नेताओं की परिवेश के रूप में अटक गई थी, हमने उसे बाहर निकाल दिया। हमारा गांधी के प्रति समर्पण का ये तरीका है, और हमारी सरकार गांधी जी के इन्हीं आदर्शों पर चलते हुए गांव गरीब के कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। आत्मनिर्भर भारत का अभियान चला रही है। आज गांव मजबूत हो रहा है, ग्राम स्वराज का बापू का विजन साकार हो रहा है। हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बार फिर से महिलाएं अहम भूमिका निभा रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, उसमें जो काम करने वाली हमारी माताएं बहनें हैं, मुझे प्रसन्नता है कि आज देश में गांवों में सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली 1 करोड़ से ज्यादा बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं। और मेरा सपना है तीसरे टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का। आज हमारे गांव की सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें ड्रोन पायलट बनी हैं। खेती के आधुनिकता की दिशा में वो नेतृत्व कर रही है। ये सारी बातें सशक्त भारत का उदाहरण है। सर्वसमावेशी भारत की भी तस्वीर है। हमारे इन प्रयासों से गरीब को गरीबी से लड़ने का आत्मबल मिला है। 10 वर्षों में हमारी सरकार की नीतियों की वजह से 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, और मैं पक्का मानता हूं पूज्य बापू की आत्मा जहां भी होती होगी हमें आशीर्वाद देती होगी।
आज जब भारत आजादी के अमृत काल में नए कीर्तिमान गढ़ रहा है, आज जब भारत जमीन से अंतरिक्ष तक नई ऊंचाइयों को छू रहा है, आज जब भारत विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, तो महात्मा गांधी जी की तपोस्थली हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और इसीलिए साबरमती आश्रम, कोचरब आश्रम, गुजरात विद्यापीठ, ऐसे सभी स्थान हम उसको आधुनिक युग के लोगों को उसके साथ जोड़ने के पक्षकार हैं। ये विकसित भारत के संकल्प, उसकी प्रेरणाओं में हमारी आस्था को भी सशक्त करता है। और मैं तो चाहूंगा अगर हो सके तो, क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है, मेरे सामने जो साबरमती आश्रम का चित्र बना पड़ा है, उसको जब भी साकार होते आप देखेंगे, हजारों की तादाद में लोग यहां आएंगे, इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे, बापू को जानने का प्रयास करेंगे। और इसलिए मैं गुजरात सरकार से भी कहूंगा, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से भी कहूंगा कि क्या एक काम कर सकते हैं, हम एक बहुत बड़ा लोग गाइड के रूप में आगे आए और एक गाइड का कंपटीशन करें, क्योंकि ये हेरिटेज सिटी है। बच्चों के बीच में कंपटीशन हो, कौन बेस्ट गाइड का काम करता है। साबरमती आश्रम में बेस्ट गाइड की सेवा कर सके ऐसे कौन लोग हैं। एक बार बच्चों में कंपटीशन होगी, हर स्कूल में कंपटीशन होगी, तो यहां का बच्चा बच्चा जानेगा साबरमती आश्रम कब बना, क्या है, क्या करता था। और दूसरा, 365 दिन हम तय करें कि प्रतिदिन अहमदाबाद के अलग अलग स्कूल के कम से कम 1000 बच्चे साबरमती आश्रम में आकर के कम से कम 1 घंटा बिताएंगे। और वो जो बच्चे उसके स्कूल के गाइड बने होंगे, वही उनको बताएंगे कि यहां पर गांधी जी बैठते थे, यहां पर खाना खाते थे, यहां पर खाना पकता था, यहां गौशाला थी, सारी बातें बताएंगे। हम इतिहास को जी सकते हैं जी। कोई एक्स्ट्रा बजट की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक नया दृष्टिकोण देना होता है। और मुझे विश्वास है बापू के आदर्श, उनसे जुड़े प्रेरणा सर राष्ट्र निर्माण की हमारी यात्रा में और अधिक मार्गदर्शन करते रहेंगे, हमें नई ताकत देते रहेंगे। मैं देशवासियों को आज इस नए प्रकल्प को आपके चरणों में समर्पित करता हूं और इस विश्वास के साथ मैं आज यहां आया हूं। और मुझे याद है, ये कोई सपना मेरा आज का नहीं है जी। मैं मुख्यमंत्री था तब से इस काम के लिए लगा था। अदालतों में भी बहुत सारा समय बीता मेरा, क्योंकि पता नहीं भांति भांति के लोग नई नई परेशानियां पैदा कर रहे थे। भारत सरकार भी उसमें अड़ंगे डालती थी उस समय, लेकिन शायद ईश्वर के आशीर्वाद है, जनता जनार्दन का आशीर्वाद है कि सारी समस्याओं से मुक्ति पाकर के अब उस सपने को साकार कर रहे हैं। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और राज्य सरकार से मेरा यही अनुरोध हो कि जल्द से जल्द इसका काम प्रारंभ हो, जल्द से जल्द पूर्ण हो, क्योंकि इस काम को पूर्ण होने में मुख्य काम है पेड़ पौधे लगाना, क्योंकि एक गीच जंगल जैसा अंदर बनना चाहिए, तो उसमें तो समय लगेगा, उसको ग्रो होने में जितना टाइम लगता है लगेगा, लेकिन लोगों को फीलिंग आना शुरू हो जाएगा। और मैं जरूर विश्वास करता हूं कि मुझे तीसरे टर्म में फिर एक बार मुझे अब कुछ कहने की बाकी नहीं रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।
जहां बसते हैं पूज्य बापू के मन वचन कर्म, उस आप देख रहे थे साबरमती आश्रम से ये We were watching live from Ahmedabad, where Indian Prime Minister Narendra Modi inaugurated the redeveloped Kochrab Ashram, the first ashram established by Mahatma Gandhi upon his return to India from South Africa in 1915. And on the commemoration of historic day of Dandi March Day, Prime Minister Narendra Modi also launched the Ashram Bhumi Vandana at the Mahatma Gandhi Sabarmati Ashram reconstruction project. He said that Bapu's ideals are a guiding light, and this will further establish his principles as it shows the steps for success. With a vision to enable the coming generations to first-hand experience the sobriety, serenity and ideals of Gandhi's life, the Prime Minister has conceptualized the Sabarmati Ashram reconstruction project. And after the inauguration, Prime Minister said that Sabarmati Ashram has always been a center of unprecedented energy. He also paid tribute to the father of the nation, Mahatma Gandhi. He also said that the ashram stood as a pivot of the Indian independence movement as the humble, serene and pious ashram, and became the place where Gandhiji steered and strategized the freedom movement. And now let's take you live across to Mauritius, where President Draupadi Murmu is addressing the gathering after conferment of the honorary degree. Have built on this rich foundation to create a vibrant, pluralistic and prosperous Mauritius that inspire Africa and the world. This power of education resonates strongly with me at a personal level too, as education has been the single most important tool that has had a transformative impact in our own life journey. At the first women from my village to receive college education, empowering the vulnerable through education is a cause that has been close to my heart throughout my administrative and political career, and one that I remain devoted to. During my time spent teaching children at the Sri Aurobindo Integral Education Center in my home district in Mayurbhanj in the state of Odisha, I saw for myself the spark that the right kind of education can ignite in young minds and the far-reaching impact it can have. The transformation is visible not only on their own lives, but that of their families, their villages, and wider society as a whole. Education is that takes us from vulnerability and deprivation to opportunities and hope. I also realized during my time as a teacher that engagement with education is in many ways an immersive experience. In educating a child, I was myself also continuously learning and evolving. I think all the educators present with us here would agree that giving and receiving learning often go hand in hand. I believe that universities like this are not just ladder to the dreams of aspirational youth. They are sites where the future of mankind is forged. This is why I feel especially honored to receive the honorary degree of Doctor of Civil Law from this prestigious university today. I hope that it will inspire all young people, particularly young women, to discover their unique passion and pursue their dreams. I thank the Chancellor of the University of Mauritius, Dr. Aitre, for this honor. I am privileged to receive it from the University of Mauritius, which has since its establishment in 1965 evolved into a leading university offering high-quality education that responds to the needs of Mauritius. Excellencies, Chancellor Otri, ladies and gentlemen, recognizing the transformative power of education and given that
half of Indian population is below the age of 25, the government of India has made it a priority to educate and empower youth to lead India into knowledge economy of tomorrow. I am confident that India's forward-looking new national education policy will tap into India's demographic dividend to become a powerhouse of innovation that enhance the well-being of humanity. In less than a decade, India has set up nearly 400 new universities, 5,300 new colleges, 75 new institutes of national importance, 14 new AIIMS, 7 new IITs, and 7 new IIM, with half of the new universities and a majority of the new colleges located in rural areas. In this exciting journey into the future, India looks forward to partnering its special friends like Mauritius. Each year, 400 Mauritians are trained in India under our Indian Technological and Economic Cooperation Program, and about 60 Mauritian students receive scholarships to pursue higher education in India. It is a matter of pride for us that many among them occupy higher positions in the Mauritian bureaucracy and public life today. Since 2020, more than 500 Mauritian students have also benefited for India's E-Vidya Bharati and E-Arogya Bharati distance learning programs. Hundreds of Mauritian youth have also been reconnecting with their Indian roots to visiting India under the Know India program and several other exchange programs. I am confident that these bonds of friendship between our youth will keep our relationship moving upwards as India embarks on its Amrit Kal journey to become a developed nation by 2047. I urge my Mauritian friends to take advantage of their special proximity to India and tap into the vast economic opportunities it offers. India sees Mauritius as a close maritime neighbor, a cherished partner in the Indian Ocean region, and a key player in our Africa outreach. Our aspiration is that Mauritius continues to progress as a leading economy and as a voice of peace, stability, and prosperity in the strategically important Indian Ocean region. Considering that robust people-to-people linkages has been the very foundation of the special friendship between India and Mauritius, I truly believe the future of our bilateral relationship lies in the hands of our youth. I am optimistic that the youth of Mauritius and India will continue to deepen this special partnership. I once again thank the University of Mauritius for receiving me and honoring me today. I extend my best wishes to the Chancellor, to all the esteemed faculty members, researchers, and students for success in their academic endeavors. To my young friends, may you bring glory to your alma mater and your country. May you be force for a better world. Thank you. Jai Hind, Jai Mauritius.